Hey guys, welcome to my channel. Today's topic is general pharmacology. We will study about the general pharmacology. Pharmacology. It is a second professional exam of MBBS, second year subject of MBBS. So in pharmacology, we will study actually related to medicine or drugs. Okay. So it is general pharmacology. So we will start with just basic topics, basic thing of the pharmacology, what actually pharmacology is. So here first we will discuss about the drugs. In pharma means drugs and cology means study. Okay, so we will study about the drugs or medicine in pharmacology. So basic definition of drugs. What is basic definition of drugs? According to WHO, drugs that is used to or intended to use to modify or explore the physiological function or pathological state for the benefit of the recipient. So it is a very standard definition of the drugs according to WHO. What that is drugs is nothing but is it is substances that is used or that is intentionally it is used to modify or explore the physiological function or pathological state for the benefit of the recipient. What do you mean by here physiological function? See, sometimes the drugs also used during the pregnancy. So pregnancy is not a pathological condition, it is a physiological condition, but due to many reasons sometimes we need to abort. So on that state we should give drugs. Okay, so it is a physiological condition also. Yes, that's why the word it is written here to explore the physiological function. Means drugs sometimes also used in physiological function. Okay, not always pathological, physiological function too. Okay, so here there are two type of pharmacokinetics and pharmacodynamics. What is pharmacokinetics? It is the effect of body on drugs. मतलब हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है ड्रग्स पे. एंड फार्मेकोडायनेमिक्स मीन्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी. ड्रग्स हमारी बॉडी में कैसा रिएक्ट करती है. दिस इज द टू बेसिक डेफिनेशन और टू बेसिक थिंग we should know about the pharmacokinetics and pharmacodynamics. So here in pharmacokinetics we will pharmacokinetics. What is pharmacokinetics? It is that body effect of the body on drugs. मतलब हमारी बॉडी कैसे ड्रग्स पे इफेक्ट करती है. तो in pharmacokinetics we will study about the four procedure. The mnemonics is ADME study. A for absorption, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. जैसे ही हम ड्रग्स लेते हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबोलाइज होती है, एक्सक्रीट होती है. दिस ऑल हेडिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फार्माकोकाइनेटिक्स. सो अवर नेक्स्ट इज रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब किस किस वे में हम ड्रग्स लेते हैं. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, लोकल एंड सिस्टमेटिक. लोकल मीन्स वी आर अप्लाइंग डायरेक्टली एट दिस साइट. एग्जाम्पल दैट इज टॉपिकल एंड इंट्राओकुलर. टॉपिकल मीन्स इफ वी हैविंग एनी स्किन इन्फेक्शन तो हम डायरेक्टली स्किन के जिस साइट पे होता है वहाँ पर अप्लाई करते हैं. एंड इंट्राओकुलर मीन्स आई ड्रॉप. ओके. एंड सेकेंड इज सिस्टमेटिक. व्हाट यू मीन बाय सिस्टमेटिक? सपोज वी आर हैविंग cardiac, we want to take drugs related to heart, so we cannot directly inject or apply anything over heart. So it's come under systematic. Again, systematic is of two type, enteral and parental. Enteral and parental. Enteral is oral and rectal route, and parental means injectable and non-injectable. Okay. Oral and rectal route, first pass metabolism. About this first pass metabolism I will discuss later, it is in further videos. And parental means injectable and non injectable. फर्स्ट इज इंजेक्टेबल. इंजेक्टेबल मतलब जो हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं. तो किस किस वे में इंजेक्शन लेते हैं हम लोग? इंट्रावीनस लेते हैं, इंट्रामस्कुलर लेते हैं, सबक्यूटेनियस लेते हैं, इंट्राडर्मल लेते हैं. सो here are the main points related to the injectable routes of administration drugs के. इंट्रावीनस जो हम लेते हैं उसकी एंगल कितनी होनी चाहिए? 25. व्हाट आर द इम्पोर्टेंट
point related to intravenous is that titration possible. Titration possible मतलब how much amount whatever amount हम जितने अमाउंट में देना चाहते हैं उतना हम दे सकते हैं. जहाँ पर हमको ड्रग्स की क्वांटिटी एंड हर कुछ बढ़ानी होती है वहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं और जहाँ पर कम करनी होती है वहाँ पर हम कर सकते हैं. ओके, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इंट्रावीनस. मतलब इट इज़ अ एडवांटेज बेसिकली. एंड इंट्रामस्कुलर एंगल इज़ 90 डिग्री. हम कोई भी मसल्स में लगाते हैं जैसे कि वैक्सीन वगैरह देते हैं तो हम लोग डायरेक्टली 90 डिग्री डेल्टॉइड मसल्स में देते हैं. अभी कोविड की हम लोग वैक्सीन ले रखे हैं. देन we have seen that the nurses are injecting 90 degree directly on the deltoid muscles. So इसके इम्पोर्टेंट क्या है, जैक ट्रैक टेक्निक्स. क्या होता है ना जैक ट्रैक्स टेक्निक कि जैसे हम अगर थोड़ा सा भी इधर उधर लगाते हैं, मतलब जैसे हम इंजेक्ट करते हैं तो वो जेड शेप में बन जाती है उसकी वो, ताकि वो डायरेक्ट बाहर ना आ सके. इसलिए वो जेड ट्रैक टेक्निक के थ्रू इंट्रामस्कुलर वीनस देते हैं. और सबक्यूटेनियस का एंगल 45 डिग्री होता है और ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव होता है. मतलब हम खुद से भी ले सकते हैं. जैसे कि इंसुलिन, डायबिटीज़ वाले इंसुलिन लेते हैं ना, सो दे कैन टेक बाय देयर ओन ऑल्सो by at the angle of 45. एंड इंट्राडर्मल ऑलमोस्ट 0 डिग्री और लेस देन 50 डिग्री में लेते हैं. इट्स जनरली टेकन फॉर एलर्जी टेस्टिंग. अगर कभी भी हम एलर्जी टेस्टिंग करवाते हैं तो हम लोग उसको पहले इंट्राडर्मल दे के देखते हैं कि ये एलर्जिक तो नहीं है. इसके बाद ये हम उसका फर्दर प्रोसीजर करते हैं. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इंजेक्टेबल रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, द एंगल एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. So next one is non-injected पेरेंटल रूट. नॉन इंजेक्टेड में क्या क्या आता है, सबलिंगुअल, इंट्रानेजल, ट्रांसडर्मल एंड इनहेलेशन. सबलिंगुअल मतलब हम लोग जो जीभ के नीचे रखते हैं. इट इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन. नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में मैं आप लोग को थोड़ी सी हिंट देती हूँ. फर्स्टली व्हाट सपोज ओरल रूट या रेक्टल रूट से हम कोई भी ड्रग्स लेते हैं तो वो क्या होती है, हमारी ड्रग्स कुछ क्वांटिटी पे लीवर पे आ जाती है. तो लीवर पे आने के बाद वो जो फर्दर हमारा एब्जॉर्प्शन से पहले वो कुछ मेटाबोलाइज्ड हो जाती है. तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. आगे अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी. तो सबलिंगुअल में क्या होता है कि हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, वो लीवर पे जाके मेटाबोलाइज नहीं होती है, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है. इसका टर्मिनेशन प्रोसेस पॉसिबल होती है. अगर हम एक बार डाल दिए उसके बाद अगर उसको टर्मिनेट करना है तो हम स्पिट कर देंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगी. और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉसिबल है. Second is intranasal. Intranasal, what are the drugs used in intranasal is desmopressin, calcitonin and esketamine. Esketamine क्या होता है, ये डिप्रेशन में एक न्यू मेडिसिन अभी लॉन्च हुई है, अभी न्यू डिस्कवर्ड है. सो इट इज जनरली यूज इन डिप्रेशन. ओके. ट्रांसडर्मल मीन्स अक्रॉस द स्किन वी आर स्टेइंग. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, एडवांटेज क्या है कि सडन पीक, मतलब ट्रांसडर्मल में धीरे धीरे जाते हैं तो सडन पीक नहीं आती है, सडन पीक अवॉइड होती है क्योंकि ड्रग्स जो होती है वो बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होती है ट्रांसडर्मल में. तो कोई भी ड्रग्स की सडन पीक नहीं आती है. तो ये इसका एडवांटेज. और इनहेलेशन मतलब जो हम इनहेल करते हैं, एग्जाम्पल साल्ब्यूटानॉल.